Oh, 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 what are they doing? Why they are fighting? है ना? मुझे तो यही दिख रहा है. They both are fighting, right? But why? Okay, so let us start our new chapter, The Fight. The Fight, written by P.D. Thomas. Okay, so let us start the chapter, The Fight. The Fight is the story of two friends. Actually, they were best friends, but now we have to know that why the title of the story is written as The Fight. Why did the two friends fight each other? So let us start with our chapter written by P.D. Thomas, and let I tell you that this story is an autobiography. What is autobiography? Actually, the autobiography is a story of a person's life written by that person itself. Okay, so this story is adapted by Amigo Brothers, and the author is P.D. Thomas. I had told this before also. This story is about two best friends named Antonio and Felix, and they both are 17 years old. So let us start with our story. 17 years old Antonio Cruz and Felix Vargas are childhood friends and aspiring lightweight champions. Each has fought many boxing matches and won a new few medals. Recently, they have been informed that they will fight each other in the division finals 2 weeks away. The winner will represent the boys club in the Golden Gloves Championship tournament. ओके, तो अब क्या होता है कि ये लोग ना 17 साल के लड़के हैं, एंटोनियो एंड फेलिक्स, और दे आर एस्पायरिंग लाइट वेट चैम्पियंस, यानी कि ये लोग छोटी छोटी सी जो पार्टी से मैचेस होते हैं ना टाउनशिप्स में, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और वो चैम्पियंस रह चुके हैं. एंड व्हाट डू मीन बाय एस्पायरिंग, यानी कि उनको शौक है कुछ करने का, कुछ बनने का, और इन लोगों ने कुछ मेडल्स भी जीते हैं. लेकिन अब कुछ दिन पहले ही उन्हें ये पता चला कि उन दोनों का नाम एक साथ है, उन दोनों का एक साथ नाम आया हुआ है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही लड़ना है, और जो जीतेगा उसे गोल्डन ग्लव चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का खिताब मिलेगा. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. One morning, less than a week before their match, Antonio and Felix met as usual for their daily workout. They ran lightly along the river's edge. अब जैसे ही ये लोग रोज़ डेली जाते थे अपने डेली वर्कआउट के लिए, तो एक दिन मॉर्निंग में ये दोनों साथ में थे. उसी टाइम पे ये दोनों धीरे धीरे रिवर्स के किनारे में जॉगिंग कर रहे थे. तो क्या होता है, एंटोनियो glanced at Felix, who kept his eyes purposely straight ahead. After a mile or so, Felix said, "Let's stop a while, bro. I think we both got something to say to each other." Actually, sorry for that call. Okay, so continuing up पैरा, जो मैं बता रही थी कि वो क्या करते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं, और जो फेलिक्स था वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था, वो स्ट्रेट देख रहा था. तो फेलिक्स क्या बोलता है कि थोड़ी देर हमें रुकना चाहिए और मुझे तुमसे कुछ बात करना है. तो वो क्या बोलता है, ओके. Antonio nodded. It was not natural to be acting as though nothing unusual was happening when two best friends were going to be blasting each other within a few days. अब क्या बोलता है वो कि हाँ, इसमें अब ऐसा बिहेव करना कि नहीं, कुछ अनयूजुअल नहीं होने वाला था. एक्चुअली कुछ होने वाला था कि एक्चुअली द थिंग वाज द बोथ बेस्ट फ्रेंड्स वर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, राइट. तो वही वो बोलता है कि अब ये चीज़ तो सीधी सी डिक्लेयर थी कि हाँ, और हम दोनों एक दूसरे को, बॉडी में ब्लास्टिंग स्ट्राइकिंग हार्ड, यानी हम एक दूसरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे की तरफ पंच करने वाले थे, यानी मारने वाले थे एक दूसरे को. Felix learned on the river's
railing and stare across to the shores of Brooklyn. अब वो क्या करता है, फेलिक्स क्या करता है कि ना जो लहरें आ रही थी उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देता है. एंटोनियो हेल्प्ड, इट्स अबाउट आ फाइट राइट. अब एंटोनियो क्या कहता है, हमारी फाइट के बारे में तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो ना. तो वो क्या बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हो, या राइट. Been thinking about it too. In fact, since we found out it was going to be me and you, I have been awake at night, pulling punches on you, trying not to hurt you. अब वो क्या बोलता है कि हाँ, जब से मैंने ये चीज़ सुनी है मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे रातों में नींद नहीं आती और मैं बस ये ट्राई करता हूँ कि मेरे जो पंचेस हैं मैं वो अपने पंचेस को पीछे करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना हाथ रोक लेता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें मारूँ नहीं. यानी कि ये अज्यूम कर रहा है, यानी कि वो अपने दिल की बात बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे लड़ूँ. सेम हियर, it ain't natural not to think about the fight. I mean, we both are fighters and we both want to win, but only one of us can win. There ain't no draws in the eliminations. अब वो क्या बोलता है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन ये कोई नेचुरल बात नहीं है, और हाँ सच बात भी है कि हम परेशान तो होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जब मैच होता है तो उसमें एक जीतता है और एक हारता है, हमेशा वन लूज एंड वन विन, राइट. तो वही वो बोलते हैं. और हाँ ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, राइट. Felix tapped Antonio gently on the shoulder. Tony, let's promise something right here, okay? Felix एंटोनियो को टैप करते हुए शोल्डर पे क्या बोलता है कि चलो टोनी, एंटोनियो को ही टोनी कहा है उसने, टोनी चलो हम यहाँ पर ही एक प्रॉमिस करते हैं. if it's fair, Himano, I'm for it. मतलब अगर वो ठीक है तो हाँ डेफिनेटली मैं तुम्हारा साथ दूंगा. What do you mean by Himano? यमैनो इज़ अ स्पेनिश फॉर ब्रदर. ब्रदर को जैसे इंडिया में भाई बोलते हैं ना हम, तो सिमिलरली वहाँ के लोग ब्रदर को यमैनो कहते हैं. इट्स फेयर टोनी. When we got into the ring, it's gotta be like we never met. We gotta be like two strangers that want the same thing and only one can have it. You understood? You understand? Don't you? अब वो क्या बोलता है कि अच्छा सुनो, हम जब रिंग में उतरेंगे, यानी कि जहाँ पर मैच होगा वो रिंग होती है, रिंग में उतरेंगे तो हमें ऐसे ट्रीट करना है एक दूसरे को कि जैसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं और हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं. तुम्हें समझ में आया? ऐसा वो उससे पूछता है. ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर. आई नो, टोनी स्माइल्ड. सी इज़ यस. यस कहने को सी कहते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में. नो पुलिंग पंचेस, वी गो ऑल द वे. और वो क्या कहता है मुस्कुराता हुआ, नहीं नहीं आपको पंच बिल्कुल भी अपने पीछे नहीं करना, मारना है और ऐसे ही हमें अपना पूरा गेम खेलना है. यानी कि उसका कहने का मतलब क्या था, जो फाइट होगी वो पूरी ईमानदारी से होगी. दैट्स राइट. लिसन टोनी, डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ़ वी डोंट सी ईच अदर अंटिल द डे ऑफ द फाइट. अच्छा टोनी सुनो, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब तक फाइट नहीं होती उस दिन तक अब हम एक दूसरे से मिले नहीं. टोनी स्क्रैच्ड हिज नोज thoughtfully. Yeah, it would be better for our heads. He held out his hand, palm upward. Deal. अब क्या होता है, वो अपनी नाक को थोड़ा सा स्क्रैच करता है. ही स्क्रैचेस हिज नोज, यानी कुछ सोचते हैं ना, और फिर वो सोच के क्या बोलता है, हाँ ठीक है ये ठीक होगा. उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं. कैसे प्रॉमिस लेते हैं, हमें से हाथ आगे करके प्रॉमिस लेते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही वो प्रॉमिस ले लेता है. डील, यानी अब बात फिक्स हो गई. फेलिक्स लाइटली स्लैप्ड ओपन स्किन, और हल्के से वो जो ओपन स्किन थी यानी उसका हाथ वगैरह के पास, वहाँ पर हल्के से ऐसे करके एक छोटा सा हम करते ना गिव मी 5 और समथिंग लाइक दैट, वैसे स्लैप करता है उसकी ओपन सी स्किन पर. लेट्स कट इट हियर. चलो ठीक है अब यहाँ बात ख़त्म करते हैं. आफ्टर द फाइट वी कैन गेट इट टुगेदर अगैन लाइक नथिंग एवर हैपेंड. और जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम दोबारा वैसे ही फ्रेंड वापस से बनकर मिलेंगे जैसे कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे के सामने हम कभी खड़े ही नहीं थे.
द एमिगो ब्रदर्स हग्ड ईच अदर टाइटली. व्हाट डू यू मीन बाय एमिगो ब्रदर्स? ऐसे भाई, ऐसे दोस्त जो बिल्कुल भाई की तरह प्यार करते हैं एक दूसरे से. तो वो दोनों फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को जोर से हग करते हैं. कंटिन्यूइंग, पैरा नंबर 17. The days in training passed much too slowly. Although they kept out of each other's way, they were aware of each other's progress via the Ghetto Grapevine. Now what happened कि ऐसे ही धीरे धीरे करके जो उनकी ट्रेनिंग थी वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, दिन गुजर जाते हैं और वो एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं. और उन्हें पता था कि ये जो प्रोग्रेस है वो किससे मिलने वाली थी, गैटो ग्रैपेवीन. व्हाट डू यू मीन बाय गैटो ग्रैपेवीन? गैटो इज़ एन ओवर क्राउडेड पार्ट ऑफ अ सिटी वेयर पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप लिव टुगेदर इन पुअर कंडीशंस. ऐसा क्राउड जो कि पुअर कंडीशंस में एक साथ रहता है. एंड ग्रैपेवीन इज़ अ नेटवर्क और सिस्टम ऑफ रूमर एंड अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. ऐसी अफवाहें जो उड़ती हैं ना, उससे उन लोगों को ये पता था कि हाँ ऐसा प्रोग्रेस मिलने वाला है. लार्ज पोस्टर्स प्लास्टेड ऑल ओवर द वॉल्स ऑफ लोकल शॉप्स अनाउंस द फाइट बिटवीन एंटोनियो क्रूज एंड फेलिक्स वर्गास एट द मेन मैच. The fight had created great interest in the neighborhood. Antonio and Felix were well liked and respected. Each had his own loyal following. अच्छा, अब क्या होता है, बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं दीवारों पर और जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि इस दिन इन दोनों एंटोनियो और फेलिक्स का मैच होने वाला है. और इन दोनों का जो मैच होने वाला था उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. जैसे कि होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच. तो उस टाइम पे लोगों में जो नॉर्मली नहीं भी देखते हैं वो भी देखना पसंद करते हैं कि नहीं आज का तो हमें देखना है ये मैच. तो सिमिलरली इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी उसके वजह से लोग इस चीज़ को देखना चाहते थे, इस मैच को बहुत ही मज़े लेना चाहते थे. और जो उनका नेबरहुड था यानी कि जो उनका एरिया था, आसपास के लोग थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल था. और जो एंटोनियो और फेलिक्स हैं उन लोगों की लोगों में बहुत इज्जत भी थी. वो दोनों को लोग जो थे वो बहुत प्यार करते थे और वो सब उनके फॉलोइंग लॉयल फॉलोअर्स थे. व्हाट डू यू मीन बाय लॉयल फॉलोइंग? यानी कि जो फ़ैन बोलते हैं ना कि हाँ उसका फ़ैन है, मैं उसका फ़ैन हूँ. तो सिमिलरली इनका भी बहुत ज़्यादा चर्चा था हर जगह. नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 19. The fight was scheduled to take place in Tompkins Square Park. Okay, ये जो फाइट होने वाली थी वो कहाँ होने वाली थी? टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में. The gymnasium of the boys club was not large enough to hold all the people who are sure to attend. और जो वहाँ का जो जिम्नेजियम था वो जो क्लब था एक्चुअली वो क्लब में इतनी स्पेस नहीं थी कि वो सारे लोग उसमें आ सकें. In Tompkins Square Park, everyone who wanted could view the fight, whether from ringside or window, fire escapes or rooftops. और वहाँ पे इस सारे लोग आ नहीं सकते थे, इसके लिए वहाँ पर टॉम स्क्वायर पार्क में एक ऐसी भी सुविधा थी कि जिसमें लोग जो फाइट थी वो रिंग साइड के पास से, विंडो से और अपने रूफटॉप्स से यानी अपनी छतों से भी सब देख सकते थे. Now coming to para number 20. The local junior high school across from Tompkins Square Park served as the dressing room for all the fighters. The loudspeakers blared into the open windows of the school. There were speeches by dignitaries, community leader and great boxes of yesteryear. This day was in the tradition of champions emerging from the streets of the Lower East Side. Okay, what do you mean by Lower East Side? Lower East Side is a working class neighborhood in New York City where people from different countries came and settled down, often living in difficult conditions. Okay, तो वहाँ के भी लोग सब शामिल हुए थे. वहाँ का जो लोकल जूनियर हाई स्कूल था उन लोगों ने सारे के सारे अरेंजमेंट किए हुए थे.
लाउड स्पीकर वगैरह लगाए गए थे स्पीचेस के लिए, डिग्निटरीज, कम्युनिटी लीडर्स और ग्रेट बॉक्सेस भी वहाँ के आए हुए थे यस्टर ईयर इस पिछले साल के, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। Coming to para number 21. Felix was accompanied from the classroom by a dozen fans in white t-shirts with the word Felix across their fronts. Antonio was escorted down a different stairwell and guided through a roped off path. ओके अब क्या होता है, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो क्लासरूम थे उसके, तो वहाँ से लोग जो यानी कि 12-15 लोग, डजन्स फैन यानी 12-15 लोग थे जो उसके फैंस थे, जिन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी और उनके आगे के पार्ट में, आगे की जो शर्ट होती है उसमें फेलिक्स लिखा हुआ था कैपिटल लेटर्स से। और जो एंटोनियो था, टोनी को बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से गाइड किया हुआ था। ओके, नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 22. As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. Antonio and Felix bowed gracefully and raised their arms in acknowledgement. Bong, bong, bong. The roar turned to stillness. ओके अब क्या होता है, जैसे ही वो लोग आकर अपने रिंग पर उतरते हैं तो सारे लोगों का चिल्लाना शुरू हो जाता है। एंटोनियो और जो फेलिक्स थे वो बहुत ग्रेसफुली, बहुत खुशी से बो करते हैं, यानी झुकते हैं सबकी तरफ और अपने आर्म्स उठाकर बहुत खुश होते हैं। वही टाइम पे एक आवाज़ आती है बोंग बोंग बोंग, लेकिन ये जो चिल्लाना था वो बंद नहीं होता, वो लोग चिल्लाते ही रहते हैं। Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. Announcer बहुत धीरे धीरे क्या बोलता है, ladies and gentlemen. In this corner, weighing 134 pounds, Felix Vargas, and in this corner, weighing 133 pounds, Antonio Cruz. Okay, इससे हमें ये पता चला कि what was the weight of Antonio and what was the weight of Felix. The winner will represent the boys club in the tournament of champions, the Golden Gloves. There will be no draw. May the best man win. अब क्या बोलते हैं वो कि ये जो प्ले होने वाला है, ये जो मैच होने वाला है, इसमें एक भी गेम ड्रॉ नहीं होगा, यानी जो जीतेगा वो बॉयज़ क्लब का टूर्नामेंट चैम्पियन बनेगा, गोल्डन ग्लव्स बनेगा, और जो बेस्ट है इसमें वही जीतने वाला है। The cheering of the crowd shook the window panes of the old building surrounding Tompkins Square Park. At the center of the ring, the referee was given instructions to the youngsters. Keep your punches up, no low blows, no punching on the back of the head. Keep your heads up, understand? Let's have a clean fight. Now shake hand and come out fighting. Okay, अब क्या होता है कि जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो लोग जो चीयर अप कर रहे थे उनकी आवाज़ से जो वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स थी आसपास में, उनकी जो विंडोज़ थी उनकी खिड़कियाँ हिल जाती हैं वो शाउट से। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा चीयरफुल मोमेंट था। और उसी टाइम पे इंस्ट्रक्शन शुरू होता है। इंस्ट्रक्शन में क्या कहा था कि आपके जो पंचेस होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, नीचे कोई नहीं मारेगा, नो पंचिंग ऑन द बैक। और कहाँ, यानी कि आपको जब मारना है तो आपने WWF तो देखा ही होगा, तो सबको पता है फाइट किस हिसाब से होती है, उनके कुछ नियम और कुछ रूल्स होते हैं। एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट रूल्स। सो व्हाट दे टोल्ड दैट नो वन विल पंच ऑन द बैक ऑफ द हेड। सर के पीछे हिस्से में नहीं मार सकते आप, और आपको अपना जो सर है वो ऊपर रखना है। समझ में आया? ओके, इवन आई एम आस्किंग, समझ में आया? इफ समझ में आया देन डू कमेंट। लेट्स हैव अ क्लीन फाइट। चलो एक साफ सुथरी लड़ाई करते हैं, यानी कि साफ सुथरी लड़ाई, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन फाइट, यानी कि जिसमें कोई चीटिंग ना हो। नाउ शेक हैंड्स। चलो अब हाथ मिलाओ और लड़ाई शुरू करो, यानी अपनी फाइट शुरू करो। लड़ाई नहीं है एक्चुअली, वो फाइट है, दैट इज अ मैच। Both youngsters touched gloves and nodded.
दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के ग्लव्स को छुआ और एक दूसरे को इशारा दिया, ठीक है। दे टर्न्ड एंड डांस्ड क्विकली टू देयर कॉर्नर्स। व्हाट डू यू मीन बाय डांस? उन्होंने वहाँ पे डांस करने आए थे? नो, वो जल्दी से टर्न हुए और वो अपनी जगह जाकर खड़े हो गए जो उनका पर्टिकुलर कॉर्नर था। होप यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया। Bong bong, round 1. Felix and Antonio turned and faced each other in a fighting pose. Felix wasted no time. He came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder and lashed out with a straight left. Antonio slipped the punch and countered with 1, 2, 3 lefts that sent a mild shock coursing through Felix. If Felix had any doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. Okay, इससे हमें क्या पता चला कि एक्चुअली क्या बोलना चाहते, जैसे ही फर्स्ट राउंड शुरू होता है तो फेलिक्स बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आता है और आकर फाइटिंग जैसे ही स्टार्ट करता है तो जब वो मार रहा था उसी वक्त एंटोनियो भी उसकी बराबरी में उसके साथ साथ बराबर लड़ाई चल रही थी। यानी कि हम इस स्टेंजा से इस पैराग्राफ से देखकर ये बात अच्छे से बता सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप उनकी लड़ाई में अफेक्ट कर रही थी तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ओके, नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 28. Antonio danced a joy to behold. His left hand was like a piston pumping jabs, one right after another, with seeming ease. Felix bobbed and weaved and never stopped boring in. What do you mean by piston? Piston, a part of an engine that moves up and down and makes other parts move. ओके, पिस्टन क्या होता है? एक इंजन पार्ट होता है जो एक चलता है और बाकी के पार्ट्स को भी चलाने में मदद करता है। जैब्स इज अ क्विक शार्प ब्लोज विद द फिस्ट, मुट्ठी से बांध कर मारते हैं ना, वो है पंप जैब्स। बॉब्ड एंड वीव्ड इज moved up and down and twisted and turned from one side to another quickly to avoid being hit. मारकर जल्दी से घूम जाना ताकि मुझे कोई नहीं मार सके। एंड बोरिंग इन इज पुशिंग हिज वे इन मेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, यानी कि एक दूसरे को पुश करना अगेंस्ट ओपोनेंट में, ठीक है। तो यानी कि इसमें किस तरीके से लड़ाई हो रही थी वो वाला पूरा फ्रेज बताया है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसका हाथ यानी पिस्टन की तरह काम कर रहा था, उसकी मुट्ठी भी चल रही थी वहाँ से भी बराबरी में। नाउ कमिंग टू, आप लोगों ने अगर WWF देखा है तो ये सब कुछ आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा, नहीं देखा है तो एक एपिसोड देख लेना। Bong. Both fighters froze a punch well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. ये दोनों जो फाइटर्स थे ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे और उन लोगों को देखकर जो रोड थी यानी कि जो चीयर अप का जो रोडनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी और ये दिखा रहा था कि हाँ ये सच में एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप है, यानी कि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं थी। दैट इफ़ दे वर फ्रेंड सो दे आर नॉट गिविंग देयर 100%. Felix and Antonio moved quickly to their respective corners. Watch that right, Tony, his trainer talked into his ear. You gotta get in there, fella. Felix trainer poured water over his curly afro locks. ओके, अब क्या होता है, जैसे फेलिक्स और एंटोनियो अपने अपने कॉर्नर्स में जाते हैं वहाँ पर टोनी का जो ट्रेनर था वो क्या कहता है, आपको जीतना है। और वो क्या करता है, उसका ट्रेनर फेलिक्स के बालों में बहुत सारा पानी डालता है। देखा होगा ना आप लोगों ने, गुस्सा ठंडा करने के लिए पानी डाल देते हैं ना। Bong bong. Round 2. Felix was off his stool and rushed Antonio like a bull, sending a hard right on his head. Antonio hurt, sent back a blurring barrage of lefts and right. What do you mean by blurring barrage? Blurring is making everything look blurred and barrage is a series. अब क्या होता है, फेलिक्स दोबारा से जल्दी से आता है और आके बहुत तेज़ी से, जैसे कि एक बैल आती है ना स्पीड में,
उस तरीके से उसने आकर फेलिक्स ने एंटोनियो को मारा और इतने तेज़ उसके सर पे मारा कि उस टाइम पे एंटोनियो को जो अपना लेफ्ट और राइट था वो थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा, यानी कि वो जो पंच था वो उसे बहुत तेज़ लगा था। राइट्स टू द बॉडी, लेफ्ट्स टू द हेड। जो राइट हैंड था उसका वो उसके बॉडी पे मार रहा था और लेफ्ट उसके हेड पे। नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच। और जो फाइटर था वो बिल्कुल भी कोई मौका ही नहीं दे रहा था। इन अ फॉग फेलिक्स heard the roaring of the crowd, who seemed to have gone insane. His head cleared to hear the bell at the end of the round. He was glad. His trainer sat him down. In his corner, Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. एक तरफ जल्दी से जाकर, अब जैसे ही फेलिक्स को आवाज़ आती है वो जाकर वहाँ एक कोने में बैठ जाता है और दूसरी तरफ जाकर एंटोनियो बैठ जाता है। अब क्या हुआ था, एंटोनियो थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था, तो सीधी सी बात है कि जो भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे थे वो उसे वो ले रहा था। द रेफरी सिग्नल द रिंग डॉक्टर टू चेक द फाइटर्स आउट। अब आवाज़ आती है, दिस सिट एंड स्माइल एट एवरीवन, सॉरी। अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को देखकर, सबको देखकर स्माइल करने लगते हैं और उसके बाद सिग्नल होता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ही डिड सो एंड देन गेव हिज ओके। उसने किया और उसने डॉक्टर ने चेक किया और उसने बोला हाँ हाँ ओके सब ठीक है। द कोल्ड वाटर स्पॉन्जेस ब्रॉट क्लैरिटी टू बोथ ब्रदर्स। अब क्या होता है, वैसे ही दोबारा से पानी डाला जाता है ठंडा, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत क्लियरली देख रहे थे, यानी कि जो एंटोनियो को थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा था तो वो ऐसा करने के बाद उसे एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। 2 राउंड हो गए। नाउ कमिंग टू राउंड नंबर 3, Bong round 3, the final round. Up to now it had been tic-tac-toe, pretty much even, but everyone knew there could be no draw and that this round would decide the winner. Both pounded away. Neither gave an inch and neither fell to the canvas. Felix's left eye was tightly closed. Blood poured from Antonio's nose. They fought toe to toe. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of a crowd gone completely mute. अब क्या होता है कि what do you mean by canvas? Canvas, the floor of the boxing race, which is covered with canvas, a kind of strong and rough cloth. Canvas एक कपड़ा होता है जिसे हम बकरम भी बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट दैट बकरम। एक्चुअली कैनवास होता है बहुत मोटा सा कपड़ा जो कि रिंग के ऊपर बिछा हुआ होता है। अब क्या होता है कि ये दोनों की जब लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे जो फेलिक्स की आंख थी वो लेफ़्ट आंख वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, यानी कि उससे दर्द उसके आंखों में शायद पंच लग गया होगा उसका, तो उसकी आंख टाइटली क्लोज्ड हो चुकी थी और जो एंटोनियो की नोज़ थी उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी और वो दोनों टो टू टो फाइट कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे थे। बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही थी, बहुत बुरी तरीके से उनका मैच चल रहा था और उनके जो फाइटिंग के जो ब्लोज थे, जो आवाज़ थी, वो उस वहाँ पर जो क्राउड था, क्राउड में बिल्कुल भी म्यूट था, यानी कि वो क्राउड बिल्कुल खामोश हो गया था और सिर्फ उनके पंचेस की आवाज़ें आ रही थी। बॉन्ग बॉन्ग द बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन। फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हियरिंग। उसके बाद और सबको ये तो पता ही था कि ये वाला मैच ड्रॉ हो नहीं सकता, तो इसमें तो सीधी सी बात है हमें विनर पता ही चलेगा। Bong, 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 the bell sounded over and over again. Felix and Antonio were fast hearing. Their blows continued to pound on each other like hailstones. Finally, the referee and the two trainers pulled the two fighters apart. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. अच्छा, क्या होता है जब लड़ाई होती है ना तो इंसान सब भूल जाता है। उस वक्त वो लड़ाई इतनी तेज़ होती है, बोलते हैं ना जब लड़ाई में इंसान अपना होशो हवास खो बैठता है। सिमिलरली वही हुआ था इन लोगों के साथ। तो वो क्या बोलता है कि आप एक काम करो, एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग उसको बुलाते हैं ट्रेनर्स को। ये दोनों मारने में इतना बिजी थे कि जब अनाउंसमेंट होता है कि गेम ओवर हो चुका है, जब भी ये दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, तो एक रेफरी और 2 ट्रेनर्स आकर इन दोनों को हटाते हैं और जल्दी से ठंडा पानी डालते हैं ताकि इनको होश आ जाए। लुक्ड अराउंड एंड देन रश टूवर्ड्स ईच अदर। अब क्या होता है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं यहाँ वहाँ देखकर और दोनों बहुत तेज़ एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं।
A cry of alarm surged through Tompkins Square Park. What do you mean by surge? रोज सडनली अचानक से एक अलार्म की आवाज़ आने लगती है. कहाँ से? टॉम स्क्वायर पार्क से. Was this going to be fight to the death? The fear soon gave way to wave upon wave of cheering as the two amigos embraced. ओके अब जैसे ही ये लड़ाई ख़त्म होती है तो क्या होता है कि अब सब ये दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं. तो सारी जो पब्लिक थी वो डर जाती है. वो सब ये सोचते हैं कि ये क्या, ये दोनों इतने जिगरी दोस्त थे, क्या ये एक दूसरे को मार कर ही मानेंगे क्या. लेकिन जब सब देखते हैं तो वो सच में वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे. वो दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया था. नो मैटर वॉट द डिसीजन दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर. अब क्या होता है, कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं है कि कौन जीतता है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा चैम्पियन रहते. बॉन्ग 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियन इज. अब क्या होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन जो रिप्रेजेंटेटिव बना है गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियन का, यहाँ पर बोल के वो लोग चुप हो जाते हैं. The announcer turned to point to the winner and found himself alone. Arm in arm, the champions had already left the ring. और जब वो रिंग की तरफ देखता है, ये बोलते बोलते अनाउंसर जो था वो बिल्कुल चुप हो जाता है. और वो देखता है कि अरे वहाँ पे तो कोई है ही नहीं. जो रिंग में दोनों के दोनों वहाँ से जा चुके थे. That means कौन जीता? Now you say me. Who was the winner? Actually, the winner was their friendship. Okay, hope you enjoyed this chapter also. Okay, and today I want to ask you all something. Actually, I'm thinking that I should change my channel name. If any name, then you can suggest in comment box. Okay, so I will wait for it. Take care. Bye bye. See you.